All of you student in the second part of the chapter 8 wind storms and the cyclone. In our last part, means in the part 1, we have saw till the monsoon, that the monsoon winds carry out by the water and its rain, and in our country the farmers generally depends on the rainfall for their harvest. Now come to the further portion of the chapter. You can see that in the page number 86 in the blue box there is the given a beautiful song of the related to the harvest festival, and you know that in our country different festivals celebrated related to the harvest. So this is given, and here is also given the thunders and the cyclones. So student, what is the thunderstorms and the cyclones? Let's see that there is given the two diagrams in your book, figure number 8.9 and figure number 8.10. In figure number 8.9, uneven heatings of land, especially the Rajasthan desert, generates monsoon winds from southwest directions in summer. These winds carry lots of water from the Indian Ocean. So this kind of winds, because you know that in the previous part, first part of the chapter, we saw that due to the uneven heating of the surface of our earth, there is generated the winds, because with the finding of heat it will become light. So here is the given the example of the Rajasthan desert generated monsoon winds from the southwest direction in summers. In summer season it will goes to the southwest, and these winds carry lot of water from the Indian Ocean. And let's see that what is given in the figure number 8.10. There is given the uneven heating of lands and water in winter generate winds from the northwest colder land. These colder winds carry little water, hence bring small amount of rain in the winter. So it will bring the small amount of rain in the winter seasons. Now, how thunderstorms and cyclones is created? So student, thunderstorms develop in hot, humid, tropical area like India very frequently. You know that our country is included in the tropical rainforest region. So this is the most favorable condition for the thunderstorms and the cyclone. दोनों ही के लिए हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही फेवरेबल है, मतलब कि बहुत ही अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन मानी जाती है इंडिया में, इसलिए यहाँ पर साइक्लोन और थंडरस्टॉर्म्स आपको इजीली देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा हॉट भी है, ह्यूमिड भी है ना, ट्रॉपिकल एरियाज़ है। और यहाँ पर द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। जो राइजिंग टेम्परेचर के साथ में क्या होगा स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो विंड है वो हल्की हो जाएगी और वो अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में वो क्या होगी, राइज होंगी। तो दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड्स। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो होंगी, पानी की जो बूंदें होंगी उन्हें ऊपर की तरफ ले जाएंगी। वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन, वहाँ पर वो फ्रीज हो जाएंगे, आपको पता है कंडेंसेशन होगा, और फिर फॉल डाउन हो जाएंगी, अगेन वो फॉल डाउन हो जाएंगी अर्थ में। तो द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड द साउंड्स। और ये क्या करेंगे, लाइटनिंग और साथ में साउंड्स भी क्रिएट करेंगी। एंड इट इज़ दिस इवेंट दैट वी कॉल द थंडरस्टॉर्म। और इसी जो प्रोसेस होती है उसे ही हम थंडरस्टॉर्म्स के नाम से जानते हैं। लेट्स सी फ्यू प्रिकॉशंस विच वी हैव टू टेक वाइल थंडरस्टॉर्म इज़ देयर। अगर आपके आसपास थंडरस्टॉर्म्स हो रहा है, लाइटनिंग हो रही है, तो इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर यू, क्योंकि इससे क्या होगा, बिजली गिरेगी, और आपने कई बार देखा होगा कि पेड़ होते हैं वो जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और अगर किसी एनिमल या मनुष्य के ऊपर ये गिरे तो वो उनकी भी डेथ हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस रखने होंगे, और इस चैप्टर में ये प्रिकॉशंस आपको मैंशन किए गए हैं, सो दैट यू विल बी प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम दैट काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन और द डिज़ास्टर। और आप दूसरों को भी बता सकते हैं कि थंडर स्टॉर्म्स अगर हो तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं बच्चों कि
डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री, कभी भी आइसोलेटेड ट्री के अंदर हमें शेल्टर नहीं लेना चाहिए, है ना, क्योंकि जो पेड़ होते हैं उसमें थंडर स्टॉर्म्स जो है वो बिजली कड़के की गिर सकती है, तो इससे हम भी उसके विक्टिम बन सकते हैं। डो नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद द मेटालिक एंड, आपको पता है कि जो अम्ब्रेला है उसका इस प्रकार से शेप होता है, उसका जो है वो मेटालिक एंड होता है, यू नो ऑल। तो ये जो मेटालिक एंड है बच्चों, तो ये मेटालिक एंड आपको मालूम है कि कंडक्टर का काम करेगा, तो थंडर स्टॉर्म को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए हमें कभी भी अम्ब्रेला को नहीं लेना है कि अरे अम्ब्रेला से हम जो है शेल्टर प्राप्त कर लेते हैं या इससे हम प्रिवेंट हो जाएंगे, बल्कि दिस इज़ रॉन्ग प्रैक्टिसेस एंड यू विल बी विक्टिम ऑफ द थंडर स्टॉर्म। तो हमें कभी भी इस तरह से मेटेलिक एंड वाली चीज़ों का सहारा नहीं लेना है। तो ये दूसरी प्रिकॉशन हमारी हो गई। थर्ड वन है कि डू नॉट सीट नियर अ विंडो, विंडो के पास में भी आपको नहीं बैठना है। ओपन गैराज, स्टोर शेड्स, मेटल शेड्स आर नॉट सेट, है ना, प्लेसेस टू टेक शेल्टर, इस तरह की प्लेसेस को बिल्कुल भी शेल्टर की तरह आपको यूज़ नहीं करना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रिकॉशन के अंतर्गत आते हैं कि अ कार और अ बस इज़ अ सेफ प्लेस टू द टेक शेल्टर, कार या बस को यदि आप शेल्टर की तरह यूज़ कर रहे हैं तो दिस इज़ वेरी गुड टू यू, है ना। एंड द नेक्स्ट वन इज़ इफ़ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड द बिल्डिंग। वाटर में अगर आप वाटर बॉडी में किसी भी प्रकार की हैं तो आपको वहाँ से बिल्कुल जल्दी से निकल जाना है और अपने घर में या बिल्डिंग के अंदर चले जाना है, क्योंकि वाटर जो होता है, वाटर बॉडी, वो बिल्कुल भी सेफ़ प्लेस नहीं है थंडर स्टॉर्म के लिए, ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये सारे थे हमारे प्रिकॉशंस जो कि हमें थंडर स्टॉर्म्स के समय रखना था। अब हम लोग देखते हैं कि हाउ अ थंडर स्टॉर्म्स बिकम अ साइक्लोन, जो थंडर स्टॉर्म होता है वो साइक्लोन में कैसे कन्वर्ट हो जाता है या कैसे उससे आता है, तो इस चीज़ को हमें अभी देखना हो। इन द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट देयर इज़ गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोन एंड वी विल study detail about the cyclone and how it is formed and what is the structure of the cyclone. So children, you know that water requires heat when it changes from the liquid to the vapor status. आपको पता है कि लिक्विड से वेपर की तरफ अगर कन्वर्ट होना है स्टेट में तो हीट की तो आवश्यकता है। तो डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंस्ड इनटू लिक्विड, क्या आपको ये क्वेश्चन अगर इरेज होता है आपके दिमाग में कि यदि वो कंडेंसेशन हो जाता है और वाटर वेपर में वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो रहा है वो लिक्विड में वापस से, तो क्या वो एनर्जी या हीट को देता है? तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बिल्कुल सही उठ रहा है और आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक लॉ है, यूनिवर्सल लॉ होता है कि एनर्जी विल नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, हम इसे ना ही तो बना सकते हैं और ना ही तो उसे नष्ट कर सकते हैं। तो उसी आधार पर हम देख सकते हैं कि आगे क्या होगा। तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट कि बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन के पहले वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर, वेपर में चेंज होती है। व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड फ्रॉम द रेन ड्रॉप्स, है ना, दिस हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। तो अब ये हीट क्या होगी, एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी, है ना। कहाँ पर रिलीज होगी, तो ऑब्वियसली वो एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास के वातावरण में ही उसके रिलीज होगी। तो द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म द एयर अराउंड, तो आसपास की एयर जो होगी उसे क्या कर देगी, वो वार्म कर देगी, गर्म कर देगी। तो द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉज द ड्रॉप्स इन प्रेशर, तो ये ड्रॉप्स में क्या करेंगे, एक प्रेशर को जनरेट करेगी। मोर एयर रश्ड टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म्स, इससे पहले भी हमने बताया था कि जब ये प्रेशर जनरेट करेगी एयर वहाँ पर, तो फिर क्या होगा कि दिस मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म्स और दिस साइकिल इज़ रिपीटेड, ये साइकिल जो है रिपीट होती चली जाएगी, बार बार ये रिपीट होती चली जाएगी एंड एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, इट इज़ दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल द साइक्लोन। तो ये जो है इस प्रकार की प्रोसेस जो है वो अगेन होती चली जा रही है और ये जो प्रोसेस है ये जब ये अगेन होती चली जा रही है तो ये प्रोसेस किसके रूप में एंड होगी, तो वो एक साइक्लोन क्रिएट हो गया और इस तरह से एंड होगी। अच्छा, अब आपको ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है ये आपके लिए कि फैक्टर्स कौन कौन से इफ़ेक्ट करते हैं या साइक्लोन को बनाने में कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, है ना, सबसे पहले तो विंड की स्पीड बहुत चाहिए, फिर विंड का डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स, है ना, विच इज़ डेवलप द साइक्लोन। तो साइक्लोन को डेवलप करने के लिए ये 4 जो है वो फैक्टर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ स्टूडेंट देख सकते हैं आपकी यहाँ पर 8.11 फिगर में
फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन आपका दिया हुआ है बुक में, और इसकी डिटेल भी दी हुई है प्रीवियस पेज में। तो यू कैन सी दैट दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द साइक्लोन। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो सेंटर वाला पार्ट है ना, इस सेंटर वाला पार्ट है वो आई कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये आई कहलाता है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से इसका फॉर्मेशन या इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये बहुत ही अच्छे से आपकी बुक में जो पेज नंबर 87 में मेंशन है ब्लू कलर के बॉक्स में, तो इसे हम और थोड़ा सा देख लेते हैं कि द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज़ द काम एरिया, है ना। जो सेंटर पार्ट होता है इसका, ये कैसा होता है? बहुत ही काम एरिया होता है। काम मतलब होता है कि बिल्कुल ही साइलेंट एरिया होता है ना, साइलेंट शांति वाला एरिया होता है। इट इज़ कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म्स। अ लार्ज साइक्लोन इज़ अ वायलेंट रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। ये एक वायलेंटली यानी बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही इतनी ज़्यादा तीव्रता से ये रोटेट होने वाला मास होता है। और बच्चों आप खुद देख सकते हैं कि इसकी हाइट जो होती है वो 10 to 15 किलोमीटर्स की इसकी हाइट होती है, और इसका डायमीटर जो होता है ना, वो 10 to 30 किलोमीटर्स तक की इसका वेरिएशन हो सकता है। एंड इट इज़ अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड द हैज़ लाइट विंड्स। उसमें क्लाउड्स नहीं होते हैं और उसमें लाइट विंड्स होती है। अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई देयर इज़ अ क्लाउड रीजन ऑफ द अबाउट 150 किलोमीटर्स इन द साइज। इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड्स, है ना। 150 से 250 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से इसमें विंड जो है वो ब्लो करेगी। जैसा कि हमने अभी इसके पहले वाले पैराग्राफ में बहुत ध्यान से देख लिया था। क्या देखा था हमने ये देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था हमारा कि विंड स्पीड, उसके बाद फिर विंड की डायरेक्शन, टेम्परेचर, और फिर उसमें ह्यूमिडिटी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें कि जो ये विंड की स्पीड है बच्चों, वो 150 से 250 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से होती है। एंड थिक क्लाउड्स विल हैवी रेन अवे फ्रॉम द रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज। द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, है ना। और मॉडल इज़ गिवन इन द फिगर नंबर 8.11। तो आप देख सकते हैं कि इसमें उसी का पूरा दिया हुआ है कि जो इसका डायमीटर है वो है 10 to 30 किलोमीटर्स, और जो इसकी हाइट है वो दी हुई है कि 15 किलोमीटर्स के अराउंड भी ये जो है इसकी हाइट जा सकती है। आप देख सकते हैं कि ये जो आई वाला एरिया है थोड़ा सा काम रहेगा। और इसमें आप विंड की डायरेक्शन भी देख सकते हैं कि विंड की डायरेक्शन इस प्रकार से जा रही है बेटा, है ना। इस तरह से विंड की स्पीड जा रही है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वेव्स हैं बहुत सारी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये देखिए सैटेलाइट से लिया गया ये आई है। और ये हमारे पेज नंबर 1 में भी, जो बुक इस चैप्टर के पेज नंबर 1 में भी ये दिया हुआ है। एंड यू कैन सी दैट इन द फिगर नंबर 8.13 देयर इज़ गिवन द वाटर वेव्स इज़ ऑल्सो गिवन। तो वाटर वेव्स आप लोग जनरली आप अगर देखते होंगे, अगर डिस्कवरी चैनल्स में या न्यूज़ चैनल्स में अगर ऐसा साइक्लोन के बारे में दिखाता है तो आपको ऐसे, या फिर अभी फ्लड भी आया था बहुत जगह पर, है ना, असम में, गुजरात में। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है जो वाटर वेव्स हैं वो भी आपको आसानी से देखने के लिए मिलती हैं। तो डिस्ट्रक्शंस कॉज्ड बाय द साइक्लोन, आपको पता है कि ये जो साइक्लोन है ये पूरा डिस्ट्रक्शन, पूरी तरह से तबाही फैलाने वाला एक कैलामिटी होता है, नेचुरल कैलामिटी कहते हैं इसे। तो साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव ही है बेटा, इसमें तो डिस्ट्रक्शन ही होगा, कोई कंस्ट्रक्शन का तो सवाल ही नहीं होता है। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टूवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म्स इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे, है ना। तो देखिए फिर से हम लोग इसको देखते हैं कि साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टूवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज़ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे। 100 किलोमीटर अवे रहेगी तो भी उसकी स्टॉर्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, बहुत ही जो है प्रेशर के साथ में वो वाटर को पुश करेगी। एंड दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन्स। द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड्स आर सो पावरफुल दैट अ मैन कैन नॉट ओवरकम दैम। मतलब कोई एक मनुष्य इससे ओवरकम हो ही नहीं सकता, उसे डूबना ही है, इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है। तो द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर, द राइजिंग वाटर में बी एज 3 to 12 मीटर्स, है ना। इसकी हाइट जो है 3 to 12 मीटर्स तक की होती है, जैसा कि आप फिगर में 8.13 में देख सकते हैं। तो इसकी जो है हाइट ये जो है 3 to 12 मीटर्स की हाइट तक की ये पहुंच सकती है। एंड इट अपीयर्स लाइक अ वाटर
वॉल, ये किस तरह से दिखाई देती है, जैसे कि पानी की पूरी एक दीवार बनी हुई इस तरह से। मूविंग टूवर्ड्स द शोर, है ना, शोर मतलब कि समुद्र का किनारा। एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लो लेइंग कोस्टल एरियाज, है ना, कॉजिंग सीवियर लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टीज़। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी लॉस होता है, बिल्डिंग्स बह जाती हैं, लोगों का जीवन नष्ट हो जाता है, बहुत सारे व्हीकल्स चले जाते हैं, बह जाते हैं, और बहुत सारे हमारे पेट जो होते हैं वो चले जाते हैं। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। आपको पता है कि जो सॉइल है, ऊपर की जो परत होती है, उसकी फर्टाइल परत होती है, वो भी उसमें बह के चली जाएगी। तो इस तरह से जो मिट्टी होती है उसकी जो फर्टिलिटी है उसको भी लॉस होता है। तो कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्जन द फ्लड सिचुएशन, और कंटिन्यूसली जब रेनफॉल होगी तो वो जो है इस सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स बना देती है, और ज़्यादा बुरी बना देती है। द हाई स्पीड विंड्स accompanying द साइक्लोन्स कैन डैमेज हाउसेज, है ना, हाउस को तो डैमेज करती है। टेलीफोन्स मतलब पूरी की पूरी कम्युनिकेशन जो नेट है, जाल होता है, उसे भी नष्ट कर देती है। एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, है ना, ट्रीज़ एट्सेट्रा। ट्रीज़, आपको पता है कि ट्रीज़ गिर जाते हैं तो फिर ट्रैफिक जाम भी हो जाएगा, मतलब कि जो कम्युनिकेशन के साथ साथ में इधर से उधर ट्रांसपोर्ट के लिए भी प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी पूरा इसमें बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। एंड कॉजिंग, है ना, ट्रिमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज़। तो लाइफ और प्रॉपर्टीज़ की भी बहुत ज़्यादा इसमें लॉस होता है। तो ये सब थे डिस्ट्रक्शन जो कि साइक्लोन के द्वारा होते हैं। इनमें पूरी लाइंस में जो है वो डिस्ट्रक्शन के बारे में अच्छे से दिया हुआ है, इंक्लूडिंग दीज लाइंस ऑल्सो, है ना। तो ये दोनों पैराग्राफ में इसके डिस्ट्रक्शन के बारे में पूरा मेंशन किया हुआ है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टूडेंट, इसमें जो है पूरा दिया हुआ है आपको कि वर्ड के कौन से वाले पार्ट में साइक्लोन को क्या कहा जाता है। तो इट इज़ नोन बाय द डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ कॉल्ड द हरिकेन इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स। जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स हैं स्टूडेंट, तो उसमें इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है, आप देख सकते हैं ना। और फिर इधर इन द फिलीपींस एंड द जापान इट इज़ कॉल्ड द टाइफून। फिलीपीन, ये देखिए टाइफून यहाँ पर कहा जा रहा है फिलीपींस में, और जो है जापान के एरियाज़ में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। और अब ये क्या होता है, तो ये जो आपने देखा कि ये जो साइक्लोन्स हैं इनका नाम अलग अलग एरियाज़ में अलग था। अब हम लोग पढ़ेंगे तो टॉर्नेडो के बारे में पढ़ेंगे कि टॉर्नेडो क्या होता है। तो स्टूडेंट, इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट। अ टॉर्नेडो इज़ अ डार्क फनल। ये टॉर्नेडो क्या होता है, तो ये डार्क, जैसे ये फनल होता है ना, ये फनल इसको कहा जाता है स्टूडेंट, ये फनल होता है। तो ये फनल के तरह दिखने वाला एक शेप होता है, क्लाउड्स दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडोज आर वीक। अधिकतर तो वीक होते हैं, पर वायलेंट टॉर्नेडोज कैन ट्रेवल एट स्पीड ऑफ द अबाउट 300 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से भी टॉर्नेडो जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। द होल कोस्ट लाइन ऑफ द इंडिया इज़ वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, है ना, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड द फ्रिक्वेंट ऑफ द साइक्लोन। अब बच्चों, ये जो है टॉर्नेडो की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये फनल शेप्ड का ये टॉर्नेडो होता है। तो यहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस दी हुई हैं कि अगर टॉर्नेडो जैसा आ जाता है तो इसके लिए हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने होंगे। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमें इस सिचुएशन में जो है अपनी नी के द्वारा और एल्बोज़ के द्वारा सपोर्ट करके इस तरह से हमें बैठ जाना, अपने कानों को भी ढक लेना है क्योंकि इसमें साउंड भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी। और अ टॉर्नेडो शेल्टर इज़ अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड द और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज़। विंडोज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसी जगह पर हमें शेल्टर लेना, और अदरवाइज इट इज़ बेटर टू शट विंडोज़ एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल। तो बेटर ये होगा कि हम अपनी विंडोज़ को क्लोज़ कर दें और टेबल के अंदर शेल्टर ले लें। एंड वर्क बीच वेदर डेब्रीज कैन नॉट रीच। डेब्रीज यानी कि जो मलबा होता है बिल्डिंग्स का या अलग अलग जगह का जो मलबा है वो हम तक पहुंच ना सके। एंड वन हैज़ टू गो डाउन टू न्यू प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग आर्म्स। तो ये जो सिचुएशन दी हुई है, तो इस सिचुएशन में हमें जो है अपने आप को प्रोटेक्ट टॉर्नेडो से हम लोग कर सकते हैं। अब नाउ स्टूडेंट्स, इतना तो हमने अभी समझ लिया, साइक्लोन के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी आपने देख लिया और टॉर्नेडो को देख लिया, और साइक्लोन का अलग अलग हमारे जो पार्ट्स हैं वर्ड के उसमें क्या कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और प्रिकॉशन वाइल देयर इज़ टॉर्नेडो
एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ 8.7 इज आर इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। तो इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स के अंतर्गत गवर्नमेंट को क्या करना होगा और पर्टिकुलरली पीपल्स को क्या करना होगा जो कि कोस्टल एरिया में रहते हैं, इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, फेस करने के लिए, और कम से कम उन्हें जो है डिज़ास्टर से कम लॉस हो, उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। ये कुछ पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं, वो हम देख लेते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं स्टूडेंट, वो ये दिए हुए हैं कि अ साइक्लोन फॉरकास्ट एंड वार्निंग सर्विसेज। आपको पता है कि जो मौसम विभाग है ना, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो साइक्लोन फॉरकास्ट करेगा और वार्निंग देगा कि आपके एरिया में जो है साइक्लोन आ सकता है। एंड रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द, है ना, टू द गवर्नमेंट एजेंसीज, द पोर्ट्स, फिशरमैन्स, है ना, शिप्स, टू द जनरल पब्लिक्स। तो जनरल पब्लिक्स को ये कम्युनिकेट होना पड़ेगा कि जो है ये तूफ़ान आने वाला है, तो उससे वो जो है अपना पहले से प्रिपरेशन कर सके। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर जो है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव को अरेंज करना होता है, और करना ही चाहिए उन्हें साइक्लोन शेल्टर्स, जिससे कि जब भी साइक्लोन आए तो जो भी वहाँ के सिटीजन्स हैं वो साइक्लोन शेल्टर में जा कर के कुछ समय बिता सके, जब तक कि साइक्लोन वो नहीं हो जाता, मतलब कि ओवरकम नहीं हो जाए हम उससे। एंड एक्शन ऑफ द ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। अब जो पीपल्स हैं उनके लिए क्या क्या ड्यूटीज़ बनती है, तो वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय द मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और द न्यूज़पेपर, टीवी या रेडियो, मतलब जिस भी कम्युनिकेशन सोर्स के द्वारा वार्निंग जारी की जा रही है, तो जो साधारण मनुष्य हैं, सिटीजन्स हैं, है ना, वहाँ के आसपास के जो नागरिक हैं, उन्हें इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और टाइम टू टाइम उन्हें ये देखते रहना चाहिए कि हमारे आसपास न्यूज़ में क्या बताया जा रहा है, जिससे कि वो इसमें अलर्ट रह सके। तो कम्युनिकेशन से इन्हें जुड़े रहना पड़ेगा, समय समय पर जो भी वार्निंग दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, वो इन्हीं कम्युनिकेशन सोर्सेज के द्वारा दी जाएगी। और वी शुड, उन्हें क्या क्या और कदम उठाने चाहिए, तो उन्हें सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू द शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स। जितने भी घरेलू सामान की जो ज़रूरी सामान वाले, जैसे कि अनाज है, पानी है पीने का, तो इन चीज़ों को एक जगह अरेंज करके रखना चाहिए, है ना। डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स को भी सेफ़र प्लेसेस में रखने के लिए इंतज़ाम रखना चाहिए। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स थ्रू स्टैंडिंग वाटर्स। ड्राइविंग बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए ऐसे रोड्स में, एज फ्लड में हैव डैमेज द रोड, क्योंकि जो फ्लड होगा वो रोड को पूरी तरह से डैमेज कर सकता है, तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। कीप रेडी टू फ़ोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज। सभी इमरजेंसी सर्विसेज के फ़ोन नंबर्स को रेडी रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि डिज़ास्टर हो गया और फिर हम फ़ोन नंबर ही ढूंढ रहे हैं हेल्पलाइंस की। तो गवर्नमेंट की जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि पुलिस है, फायर है, फायर ब्रिगेड्स एंड द मेडिकल सेंटर्स, इन सब के नंबर्स भी बिल्कुल तैयार रखना चाहिए, जिससे कि कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम उनसे ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकें। सम अदर प्रिकॉशंस इफ़ यू आर स्टेइंग इन अ साइक्लोन हीट एरिया। और जो भी साइक्लोन हीट एरिया में रहते हैं उन्हें और भी प्रिकॉशंस कौन कौन से रखने से चाहिए, तो हो सकता है कि वो वाटर कंटामिनेटेड हो गया हो, मतलब प्रदूषित हो गया हो, तो हमेशा जो है ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर द इमरजेंसी के लिए ड्रिंकिंग वाटर को अच्छे से कलेक्ट करना चाहिए। डू नॉट टच वेट स्विचेस को कभी भी टच नहीं करना चाहिए, है ना, या फिर फॉलन पावर्स लाइंस को भी टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे क्या है, करंट फ्लो हो जाएगा और हमें जो है करंट लग सकता है, डेथ भी हो सकती है। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बिल्कुल भी घरों से बाहर नहीं निकलना है कि चलो हम घूम के आते हैं या मज़े करके आते हैं, इस तरह का एटीट्यूड बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। डू नॉट, है ना, प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स टू मेकिंग अनड्यू डिमांड्स। जो ऐसी डिमांड्स हमें बिल्कुल भी रेस्क्यू टीम के साथ नहीं रखना चाहिए जो कि वो पूरा ना कर पाएँ या कि जो अननेसेसरी हैं। एंड कॉपरेट द हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स। यदि आपके नेबर या फ्रेंड्स को किसी भी ऐसे डिज़ास्टर में कोई ज़रूरत है तो उनकी बिल्कुल हेल्प करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारे साथ भी ऐसी कभी सिचुएशन हो जाए तो हमें किसी की हेल्प चाहिए हो, तो इस तरह से हमें अपने नेबर्स हैं और फ्रेंड्स हैं उनकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए। एंड स्टूडेंट, ये बहुत ही बच्चों आपको पता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो जिसके द्वारा अभी बहुत ही आसान हो गया है। पहले इस तरह के वेदर फॉरकास्ट बहुत अच्छे से नहीं हो पाते थे, लेकिन अभी एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो बेटर प्रोटेक्टेड हो गए हैं इन द अर्ली पार्ट्स ऑफ द लास्ट सेंचुरीज़, है ना। तो कोस्टल रेसिडेंट्स में हैव हैड लेस देन द डे टू प्रिपेयर और इवैक्यूएट देयर होम्स फ्रॉम द ऑनकमिंग साइक्लोन्स, क्योंकि द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट। अभी
का जो प्रेजेंट एरा है वो बिल्कुल डिफरेंट है पुराने समय से, थैंक्स टू द सैटेलाइट्स एंड द राडार्स। जो सैटेलाइट्स हैं और राडार्स हैं ये वेदर फॉरकास्टिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये साइक्लोन अलर्ट को जो है साइक्लोन वॉच इज़ इशूड 48 आवर्स बिफोर एडवांस में ही ऑफ एनी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म्स का, और साइक्लोन वार्निंग इशू कर देते हैं 24 आवर्स पहले ही, 48 आवर्स पहले ही कर दिया जाता है अलर्ट इशू, जिससे कि जो भी वहाँ के कोस्टल एरिया में रहने वाले सिटीजन्स हैं वो अपनी पूरी प्रिपरेशन जो है आराम से कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें जो है ज़्यादा हानि ना हो सके, ज़्यादा लॉस ना हो सके। तो द मैसेज इज़ ब्रॉडकास्ट एवरी आवर्स। और स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि हर घंटे या हर आधे घंटे में भी मैसेज ब्रॉडकास्ट किया जाता है व्हेन द साइक्लोन इज़ नियरर द कोस्टल एरिया। और जब कोस्टल एरिया की तरफ साइक्लोन बढ़ता है तो इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ आजकल हो गई हैं इन्हीं सैटेलाइट और राडार्स के द्वारा कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स है वो हर आधे घंटे में और 1 घंटे में लोगों को बता देते हैं कि कितनी दूरी पर आपका ये जो है साइक्लोन पहुंच चुका है। तो सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड टू डिज़ास्टर। तो इस डिज़ास्टर से बचने के लिए जो है अभी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ बहुत आ चुकी हैं और इसके द्वारा जो है लोगों को बहुत अच्छे से अलर्ट मिल जाता है 24 आवर्स अर्लियर एंड 48 आवर्स अर्लियर, जिससे कि वो अपना नेसेसरी अरेंजमेंट कर सकते हैं और कम से कम उन्हें लॉस होता है। So student, this is the whole chapter and there is given few keywords like anemometer. Yes, anemometer is given which is left one portion. तो इसे हम लोग देख लेते हैं। एनेमोमीटर, ये देखिए यहाँ पर कुछ 2 चीज़ें हमारी थोड़ी सी छूट गई थी। तो ये है टॉर्नेडो का डायग्राम, है ना, आपको दिख रहा होगा ट्री की तरह, पर ये जो है इमेज ये टॉर्नेडो की है ना। ये इस तरह से ये आती हैं और इसके प्रिकॉशन के लिए तो यहाँ पर जो है इसके प्रीवियस पेज में आपको बता ही चुके हैं कि किस तरह से आपको जो है टॉर्नेडो से अपना बचाव करना है। तो ये दिस इज़ द इमेज गिवन इन द बुक फिगर नंबर 8.16 दैट व्हाट इज़ हाउ टॉर्नेडो लुक्स एंड हियर इज़ गिवन द एनीमोमीटर, है ना। यहाँ पर एनीमोमीटर का जो है ये डायग्राम दिया हुआ है। तो वी हैव लर्न दैट ऑल स्टॉर्म्स आर लो प्रेशर सिस्टम्स, wind speeds play an important role in the formation of the storms. It is therefore important to measure the wind speeds. The instruments that measure the wind speed is called the anemometer. तो देखिए कीवर्ड में आपको दिख गया है कि किस तरह से आप एनेमोमीटर की डेफिनेशन को निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये एनेमोमीटर होता है और ये एनेमोमीटर जो होता है वो क्या करता है, तो दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द विंड स्पीड, है ना। विंड की स्पीड को जो है वो मेज़र करता है कि कितनी स्पीड है। तो उससे पता लग जाता है कि कहीं साइक्लोन आने के चांसेस तो नहीं है, क्योंकि आपको हमने पहले ही बता दिया था कि जो विंड है उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो 150 से 250 किलोमीटर्स पर आवर की होनी चाहिए। तो 150 to 250 देखिए 150 to 250 किलोमीटर्स पर आवर की जो स्पीड होती है, ये यदि इस विंड किसी भी विंड की होती है तो वो जो है साइक्लोन को क्रिएट कर सकती है। तो एनेमोमीटर के द्वारा हम इसे आसानी से मेज़र कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज़ क्वाइट क्लियर द ऑल टॉपिक्स एंड हियर फ्यू मोर कीवर्ड्स इज़ गिवन इन योर बुक्स लाइक साइक्लोन, है ना, हरिकेन, लाइटनिंग, लो प्रेशर, मानसून विंड्स, प्रेशर, है ना, thunderstorms, tornado, typhoons and the wind flow patterns. So student, I think this is not very difficult to all of you to find the keywords from your chapter. This is very easy given, and if you find it difficult you can find it from this portion what you have learned. So this is the whole chapter and I think it is very simple to all of you, and you can see the video again and again to clarify your doubts, and if you have doubts you can drop your doubts in the comment box, and this is the whole chapter now. Thank you and have a nice day.